Hello, guys. Welcome back to another episode of the Jai Thakkar Show. This is a solo podcast, but this podcast is a little unique podcast, and unique in the sense of presentation and in the sense of content. So, what is unique and what is different in this podcast? The unique and different thing is we are going to review few reels of Vedant Rusty. So, what inspired me to start to do this review of Vedant Rusty's reel is it's one reel about friends on three types of people you should avoid, and we'll be going through that reel first. And the very beauty of that reel is that it is so true, and true in the sense that majority we tend to stay away from the people whom we personally do not like, and the kind of content you can see on Instagram and to every other platform is we specify the kind of personality. But here in this video, Vedant has specified the kind of traits which a person has. He has never standardized a set of personality. He standardized a set of trait. That trait can be found in people whom you perceive as successful, and also in the kind of people whom you see or you perceive as less successful than yours. So these are the traits which majorly we'll be talking about, and after that we'll be reviewing few more reels so that we can understand and we can sort of have a review video of what kind of content you can see on Vedant Rusty's Instagram page. So by the way, all his links and all the credits are there in description, and also do like, share, and subscribe to this video. I am damn sure you will see Vedant Rusty in a whole new way. So let us start with the first video. Three kinds of people that you need to avoid in your life to be happier. Number one, ऐसे लोग जो हमेशा सिर्फ गुस्सा रहते हैं. First point is to stay away from people who are angry. Let us understand what this angriness is and what kind of traits do we see around these kind of people. So these angry people are majorly the people जो बहुत ही instinctively और बहुत ही aggressive reaction देते हैं. आपने आसपास देखा होगा मोस्टली कॉलेजेस एंड मोस्टली बॉयज आर सच काइंड ऑफ पर्सनालिटीज जहाँ पे मेजरली बॉयज है यार यार कुछ मस्ती करो, कुछ लड़ाई करो, कुछ एंगेजिंग करो, एंड दे आर मोस्टली ऑन आर अरे इसको बोल दिया मैं ये कर दूंगा, अरे उसको वो बोल दिया इसको ये कर दूंगा, मेरे को वो बोल दिया मैं ये कर दूंगा, दिस दैट. सो दीज आर द मेजर पर्सनालिटीज you can sync with the trait of angry people who are always in anger, who are always in aggression, who just want to show their aggression with this or that method or in this or that way. So these are the people whom you want to avoid. Then comes the second kind of people. Number two, ऐसे लोग जिनको ड्रामा बनाने की लाइफ में बहुत ज्यादा आदत है. These people who majorly does dramas, and ये dramas को हम trace कैसे करें, ये ड्रामा वाले people होते कहाँ से है? You can see majorly these kind of people जो वो झगड़ा करवाते हैं, जो bitching करते हैं, these bitching people. And let me tell you that ये जो trait बना रखा है कि girls are more bitching, girls do these bitching things more, even these kind of people you can find, these kind of traits you can find in boys as well, क्योंकि boys में ग्रुपिज्म कॉन्सेप्ट आ जाता है. वो ग्रुप में बैठ के दूसरे ग्रुप की चुगली करते हैं, दूसरे ग्रुप की पिचिंग करते हैं, दैट गाय डिड दिस, दैट गाय डिड दैट. मे बी टॉपिक्स अलग अलग हो सकते हैं, बट द मेजर क्रक्स ऑफ पिचिंग इज द सेम, एंड दीज काइंड ऑफ पीपल you should avoid because they are just here to eat your brain out, to eat your energy, to eat your time and give you nothing in return. And this is nothing but waste of time, guys. अगर मैं किसी ऐसे इंसान के साथ बैठ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, कन्वर्स कर रहा हूँ जो बस दूसरे इंसान या दूसरे ग्रुप के बारे में बिचिंग करते रहते हैं, तो ना मेरा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है सही जगह पे, लाइक द टाइम आई एम स्पेंडिंग देयर, अगर वो टाइम में मेरे मेंटल रिफ्रेशमेंट के लिए यूज कर देता तो भी आई वुड बी मेंटली मच मोर हैप्पियर. और इसी हैप्पीनेस की वजह से हम टाइम वेस्ट कहते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आप किसी इंसान से बात करो वर्सेस आप कुछ काम करो, कुछ ग्रोथ करो. जो मेंटल रिलैक्सेशन होता है वो मेंटल रिलैक्सेशन में भी द काइंड ऑफ फ्रेंड्स यू टॉक विथ, यू कन्वर्स विथ, यू बी विथ मीन अ लॉट. Coming to the third point which Vedant. नंबर थ्री, ऐसे लोग जो हमेशा इस मेंटालिटी से रहते हैं कि उनके साथ लाइफ बहुत बुरा कर रही है. अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसे लोग हैं तो ट्रस्ट मी, यू आर बेटर ऑफ कटिंग देम ऑफ. जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, हमेशा कंप्लेन, मेरी लाइफ ऐसी, मेरा प्रॉब्लम वो, मेरा प्रॉब्लम. These are the kind of people who just want sympathy.
बहुत ही माइनर लाइन ऑफ डिफरेंस है। अगर कोई दोस्त आपको अपना समझ के अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है वर्सेस कोई दोस्त कंप्लेन पे कंप्लेन करे जा रहे हैं, ये बहुत ही माइनर डिफरेंस है टू अंडरस्टैंड। क्योंकि अगर ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे ना तो हर किसी कंप्लेन को रिजेक्ट कर देंगे, और हर किसी कंप्लेन को रिजेक्ट करने से फिर हम काइंड कैसे रह सकते हैं फिर लोगों के साथ। हम कंप्लेन ही मना कर देते हैं, हम उनकी लाइफ की अनफेयरनेस वाली बातों को ही रिजेक्ट कर देंगे डायरेक्टली। तो हम किसी इंसान को समझ नहीं पाएंगे, फिर वो दोस्ती नहीं रहेगी, फिर हम उससे दोस्त बन भी नहीं पाएंगे। सो टू अंडरस्टैंड दिस लाइन ऑफ डिफरेंस कि किस लेवल पे कंप्लेनिंग आप सह सकते हो और किस लेवल पे कंप्लेनिंग आप नहीं सह सकते। एंड वन मेजर डिफरेंस इज रिपीटेटिवनेस। जो इंसान एक ही कंप्लेंट बार बार रिपीट करते जाते हैं, you do not want to be associated with those kind of people, because they are not here to take any advice of yours, to implement your advice, but they are just here to complain. They are just here to dump their minds trash over you and to waste your and their time. सो कंप्लेन करना बुरी बात नहीं है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करना बुरी बात नहीं है, बट वो एक लिमिट तक अच्छी बात है, उससे आगे नहीं। अगर आप बार बार कंप्लेन कर रहे हो, अगर आप बार बार चीजें रिपीट करे जा रहे हो किसी इंसान को, तो वो इंसान भी बोर हो रहा है सुन के, और आपकी वैल्यू भी डाउन हो जा रही है। सो इट्स बेटर टू लीव दोज पीपल हु आर कंप्लेनिंग अबाउट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। एंड ऑल्सो वन मेजर डिफरेंस इज, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मुझे कोई एडवाइस दी, मैंने कंप्लेन की, आपने मुझे कोई एडवाइस की, अगर मैं उस एडवाइस को जाके इंप्लीमेंट कर रहा हूं, देन दैट इज गुड। इवन इफ आई एम कंप्लेनिंग अगेन एंड अगेन, दैट मीन्स वो कंप्लेन चेंज होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ बोला कि जय स्टार्ट वर्किंग आउट, मैंने वर्कआउट करना शुरू किया, उसमें कुछ दिक्कतें आ रही है, मैं आपके पास आ रहा हूं कि वर्कआउट तो करना शुरू किया बट उसमें पेन हो रहा है, तो उस पेन को कैसे हैंडल किया जाए। सो दीज काइंड ऑफ कंप्लेन्स, दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स which are coming after implementing your solution or after thinking about your solution, then that is good, that can be handled and that can be talked to. बट अगर आप ये बोलो कि जय जिम जा, मैं आपको जाने से पहले ही 10 बहाने बना रहा हूँ कि नहीं यार बहुत दर्द होता है, टाइम वेस्ट होता है, दिस दैट, और वो रिपीटेडली हुआ जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ, कंप्लेन कर रहा हूँ रिपीटेडली, देन स्टॉप दीज काइंड ऑफ पीपल, डू नॉट टॉक, do not converse. And talk and converse मतलब ऐसा नहीं कि दूर से ही बात करो, कुछ भी नहीं, this that, but do not talk and converse in the sense, do not involve your time, do not invest your time and energy into these kind of people for talking, conversation and making friends with. So these are the 3 kind of people you can avoid, and this is how I perceived Vedant's reel on 3 types of people you should avoid. Now moving on to another reel where he talks about good friends and great friends. Let us see. This will help you figure out who your good friends are and who your great friends are. Recently, I read about something called the traffic test. The traffic test is when, let's say, you're finishing a hangout with a friend and तुम में से कोई किसी को घर ड्रॉप करने जा रहा है या कार तक वॉक करने जा रहा है, and if you are rooting कि यार काश रास्ते में ट्रैफिक मिल जाए ताकि हमारा कॉन्वर्सेशन, हमारा हैंग आउट सेशन और लंबा चले, that is when you know that you are enjoying the conversation and you enjoy their company more than with your other friends. There are some people who pass the traffic test and some who don't. Okay. So firstly, let us understand कि वेदांत कहना क्या चाहते हैं about great friends. Great friends are the people with whom you can talk, you can have long conversations, and also with whom you can hang out. And आपको लगता है यार ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो सब करते हैं, तो उसमें फर्क क्या है? गुड और ग्रेट में फिर डिफरेंस क्या है? हम तो उन्हीं को गुड मानते हैं, उन्हीं को ग्रेट मानते हैं, तो ये ग्रेट और गुड का डिफरेंस क्या है? तो ये डिफरेंस के लिए मैं आपको पहले एक हल्की सी बात बताना चाहता हूं, या ये आप अपने आसपास नोटिस कर सकते हो, खुद से भी नोटिस कर सकते हो। देयर आर फ्यू पीपल विथ whom you just like to hang out. उनके साथ आप लाइफ के दुख दर्द बताना या शेयर करना नहीं चाहते, ना ही उनके दुख दर्द आपको जानने में इतनी इंटरेस्ट है। Versus there is another group of people with whom you just like to share all your problems. उनके साथ बस बैठ के आपको प्रॉब्लम बोलनी है, आपके बात करना है, बट उनके साथ आपको हैंग आउट करने का इतना मन नहीं होता, यू डोंट फील हैंगिंग आउट विद देम। एंड व्हेन दीज टू सेपरेट पीपल, दीज टू पीपल कम अंडर गुड फ्रेंड्स की कैटेगरी, क्योंकि एक के साथ आप इन्वॉल्व हो रहे हो, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसमें आपकी प्रॉब्लम आ रही है, जिसके साथ आप ओवरऑल दुख शेयर कर रहे हो। These are a different kind of people. And then these people जिनके साथ आप हैंग आउट कर रहे हो, जिनके साथ आप अपनी खुशियां शेयर कर रहे हो, आप पार्टी शेयर कर रहे हो, एंड मेजरली दुनिया को ये वाले दोस्त ज्यादा दिखते हैं, ये वाले दोस्तों से ज्यादा वैलिडेशन लेते हैं, ये वाले दोस्तों को वो ज्यादा
एक ऊपर स्ट्रैटा में देखते हैं कि ऐसे दोस्त हो तो ओहो लाइफ ही लाइफ, बेस्ट फ्रेंड, दिस फ्रेंड, दैट फ्रेंड। बट हर किसी को दिस टाइप के दोस्त चाहिए रहते हैं जिनके साथ आप बैठ के प्रॉब्लम बात करके शेयर कर सको। देन देयर कम्स दिस ग्रेट फ्रेंड्स की कैटेगरी, और उस ग्रेट फ्रेंड के साथ आप हैंग आउट भी कर सकते हो, आप लंबी लंबी बातें भी कर सकते हो बैठ के। दोनों में आपको अच्छा फील होगा और दोनों करने में मजा आएगा। जब आप फ्रेंड की डेफिनेशन डिफाइन करते हो तो मेजरली फ्रेंड की डेफिनेशन डिफाइन करने में हम बोलते हैं जिसके साथ आप दुख शेयर कर सको या जिसके साथ आप खुशियां शेयर करना पसंद करो। बट जब दोनों एक साथ मिल जाता है तब वो दोस्त नहीं मित्र बन जाता है, तब वो गुड फ्रेंड नहीं ग्रेट फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, क्योंकि उनके साथ आप ऑलमोस्ट एवरीथिंग शेयर कर रहे हो, एक्सपीरियंस बाय हैंगिंग आउट एंड problems by conversation with them. And when you have this great friend, after avoiding those three kind of people, you are good to go in terms of the kind of people you have around you. And ये बोलते हैं ना कि आपके आसपास के लोग मैटर करते हैं. This is because like I have realized it after going away from home, after staying in hostel and after talking and after being around the people of my age group, कि major conversation लोगों की होती है about love, relationship, and about career, about money, about status, about clothes, about fashion, and these or about any trending topic which is there on internet. Other than that कोई as in conversation होती नहीं जहां पर आप लाइफ में एक डीप आइडिया पे कॉन्वर्स कर रहे हो. मैं ये नहीं बोलता कि ये सारी कॉन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी कॉन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट है, बट क्या उस कॉन्वर्सेशन में आपके आइडियाज, आपकी पर्सनैलिटी इन्वेस्ट हो रही है? क्या आप अपने आइडियाज को पैशनेटली रख पा रहे हो जो आप सोच पा रहे हो? इवन व्हेन यू टॉक अबाउट लव एंड रिलेशनशिप, क्या आप उस लव एंड रिलेशनशिप में अपना आइडिया शेयर कर पा रहे हो, अपना आइडिया इनपुट कर पा रहे हो, या फिर आप बस सुन रहे हो हाँ दिस दैट, व्हाट इज कमिंग दैट इज व्हाट यू आर गिविंग, दिस एंड दैट. These kind of groups influence you a lot. And जब आप किसी इंसान के साथ अपने दुख दर्द शेयर करते हो तो वो इंसान के साथ आप मेजरली अपने आइडियाज भी शेयर कर सकते हो, अपने आइडियाज को पैशनेटली फॉर्म कर सकते हो. Whereas majority people have the group with whom they like to hang out, और इसी ग्रुप के साथ मेजरली ट्रेंडिंग टॉपिक्स, these that, ये बातें होती रहती हैं, which is good for refreshment. But to engage yourself, to invest your time for a longer run, you need to have both kind of conversation जहाँ पे आप फ्रेश भी हो रहे हो, रिफ्रेश भी हो रहा है, और साथ साथ आप अपना आइडिया, अपना थॉट प्रोसेस, अपना टाइम इन्वेस्ट करके कुछ अच्छा प्रोडक्टिव निकाल पा रहे हो. So that's why friends are majorly important. अब फ्रेंड्स बनाने के बाद आपको अपने में क्या चेंजेस करने चाहिए? So let us see this another video from Vedant about where he tells about 3 things he knew in the past, and let us know what kind of things he knew. 3 things I wish I had known sooner in life. Number 1, complaining is pointless. सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, हमारा गोल होना चाहिए उनको सॉल्व करना. अगर तुम कर सकते हो तो go solve them. अगर तुम सॉल्व नहीं कर सकते then shut up about them. The first point where he tells about complaining, कि कंप्लेनिंग करने से कोई फायदा नहीं है. या तो आप सॉल्व कर सकते हो तो जाके सॉल्व करो, अगर नहीं कर सकते तो उसके बारे में बोलना या कंप्लेन करना बंद कर दो. I have a little different opinion about it, so let us understand what exactly he is telling to say. इसकी अगर आप कंप्लेन कर रहे हो तो कंप्लेन के साथ किस बेसिस पे कर रहे हो? कि मैं किसी इंसान को जाके कंप्लेन कर रहा हूँ, इट कैन बी इन डिफरेंट वेज. फर्स्ट इट कैन कि मैं उस इंसान को फीडबैक दे रहा हूँ किसी बात का, कि यार तू ऐसा कर रहा है, तू वैसा कर रहा है, ये गलत है, ये सही है, दिस दैट, वो एक फीडबैक दे रहा हूँ. तो कंप्लेनिंग एक तो हो गई एक फीडबैक में, जो जनरली हम कंप्लेनिंग के टर्म्स में परसीव करते हैं. मैं उस परसेप्शन के बेसिस पे उसको कंप्लेनिंग कर रहा हूँ ना. व्हाट वेदांत इज ट्राइंग टू टेल इज कंप्लेनिंग अबाउट व्हाट यू फील. जो थर्ड काइंड ऑफ कैटेगरी हमने डिस्कस की थी, जहां पे लोग बस अपनी लाइफ के बारे में बोलते रहते हैं कि यार मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मेरी लाइफ में वो चल रहा है, दिस दैट. इस तरह की कंप्लेनिंग को वेदांत कह रहा है कि यू नीड टू सॉल्व देम. इफ यू कैन नॉट सॉल्व देम, जस्ट स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट. एंड आई हैव अ लिटिल डिफरेंट ओपिनियन अबाउट इट, कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड कैन वी सॉल्व इट और नॉट. क्योंकि हर बार हमारे पास सारे सोल्यूशन होते नहीं है, हमें कभी कभार सोल्यूशन बाहर से लेना पड़ता है, और हर बार वो बाहर का सोर्स इंटरनेट भी नहीं होता जहां पे हम हमारी प्रॉब्लम आके रख सके, हम हमारी कंप्लेन आके बता सके. तो वो एक फ्रेंड सर्कल या फैमिली या जो इंसान हमारे आसपास उतना क्लोज है, उस इंसान के साथ हम जाके
शेयर करते हैं, कंप्लेन करते हैं, ताकि उस इंसान के पर्सपेक्टिव के बेसिस पे हमें एक सोल्यूशन मिल सके। सो ऐसा नहीं है कि कंप्लेनिंग बंद कर देना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ माय ओपिनियन, व्हाट वी कैन डू इज वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट एंड हाउ टू कंप्लेन। एंड इसमें ना हम वही जो एनालॉजी मैंने बताई थी पहले, कि आप कैसे कितनी किस लेवल पे कंप्लेन कर रहे हो। अगर मेरी कंप्लेन करने के बाद आपने कोई मुझे फीडबैक दिया और उस फीडबैक पे मैंने इंप्लीमेंट किया, देन दैट इज व्हाट यू नीड टू डू आफ्टर कंप्लेनिंग, आफ्टर गेटिंग अ फीडबैक, a solution or a guidance to what can you do to solve this problem. After following and implementing it, you can ask and go and further inquire about the kind of solution you are processing on. But अगर आप वो चीज नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ बोलते जा रहे हो ये है ये है ये है, आपको करने का मन नहीं है, then please stop complaining. You are wasting your and other people's time. अगर आपको सोल्यूशन नहीं चाहिए, अगर आपको सॉल्व नहीं करनी है, देन प्लीज डू नॉट कंप्लेन। आप कंप्लेन सिर्फ और सिर्फ फेक सिंपैथी गेन करने के लिए कर रहे हो, और वो फेक सिंपैथी का आपकी लाइफ में इस मोमेंट पे और ना ही फ्यूचर में कोई रेलेवेंस या लेना देना नहीं है। आप बस एक मेंटल मास्टरबेशन कर रहे हो, कंप्लेन कर करके। But if you want a solution, then go and talk to the correct person and take their advices and start implementing it. So do not stop complaining, but understand the importance of solution and feedback which the other person is giving after investing the time of listening your complaint and thinking and processing and then coming up with a solution for you. So respect that time if you want to complain. Moving on to the next point. We do exercise every day. It can be a small exercise or it can be a full-blown workout. But everything that you will build in life will start from having a healthy mind and a healthy body. अगर तुम वो नहीं बना सकते हो, then how do you expect yourself to actually build anything meaningful in your life? Second point is to exercise and work out daily. And that doesn't mean a heavy workout कि आप जाके जिम में हो मतलब पूरा drain down हो जाओ. Not that kind of workout. Workout means you just have a physical movement every day so that you can keep yourself healthy and fit. And इसका ना बहुत सारे implication है, and what I personally have experienced, I'll tell you on basis of that. अब जब एक्सरसाइज करते हो तब आप थक जाते हो, और उस थकान उस एक्सरसाइज के माध्यम से आप क्या होता है कि आपके दिन का जो पूरा स्ट्रेस है, चाहे अगर आप सुबह कर रहे हो तो पिछले दिन का स्ट्रेस, अगर आप शाम को कर रहे हो तो उस दिन का स्ट्रेस, जो स्ट्रेस होता है आप उस वर्कआउट में एनर्जी के फॉर्म में आप वो स्ट्रेस काफी हद तक रिलीज कर देते हो. एंड द स्ट्रेस इज वेयर गुस्सा आ रहा है, आप टेंशन में हो, आपको कुछ करना है बट कुछ हो नहीं रहा है, दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. और जब आप वो एक्ट करते हो, जब आप वो एक्सरसाइज करते हो, तब उस एक्सरसाइज की वजह से क्या होता है कि एक तो वो स्ट्रेस भूल जा रहे हो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि आपका सारा फोकस एक्सरसाइज में है कि क्या मैं एक्सरसाइज सही कर रहा हूँ, आपकी सांस फूल रही है, आपकी धड़कन बढ़ रही है, आप वो एक्सरसाइज में फुल फोकस्ड हो, तो उस टाइम के लिए आप स्ट्रेस भूल जाते हो, और वो जो स्ट्रेस के लिए जो आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही थी, वो एनर्जी इसमें इन्वेस्ट हो रही है. तो एक तो ये फायदा है एक्सरसाइज करने का. दूसरा कि जब आप भूल रहे हो वो पॉइंट, जब आप भूल रहे हो स्ट्रेस वाली पूरी चीजें कुछ टाइम के लिए, तब वो भूलने की वजह से आपका दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, आपका दिमाग पे वो थोड़ा प्रेशर कम पड़ जाता है. फिर आप थकान के बाद एक ब्लैंक स्टेज पे पहुंचने लगते हो, और उस ब्लैंक स्टेज पे पहुंचने के बाद यू आर मच मोर लाइकली टू थिंक प्रॉपरली ऑन द काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, और फिर उसके बाद आप अच्छे से एक्ट भी कर पाओगे. और दूसरा फायदा क्या है, एक लिटरल फायदा, कि आप हेल्दी रहोगे तो चांसेस आर कि आप फिजिकली अपने आप को फिट कर लोगे उस एक फिजिकल चैलेंजेस के लिए. आपको इधर उधर भागना है, ये करना है, वो करना है. अगर आप फिजिकली फिट हो तो आपको उतनी तकलीफें नहीं आएंगी अपने गोल तक पहुंचने के लिए. और दूसरा, अगर आप मेंटली फिट हो, अगर आप मेंटली एक ब्लैंक स्टेज पे कंटिन्यूअसली पहुंच पा रहे हो, देन उस ब्लैंक स्टेज पे पहुंचने की वजह से आप चीजों को अच्छे से मेजर कर पा रहे हो, अच्छे पैटर्न, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ रही है. क्योंकि अगर दिमाग में कुछ नहीं चल रहा ना, तो जो आप देख रहे हो वो पैटर्न एनालाइज होने लगता है, और जब वो पैटर्न एनालाइज होने लगता है, जब आप चीजों को देखने लगते हो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, आप ऑब्जर्व करने लगते हो, तो उस ऑब्जर्वेशन से आप काफी कुछ चीजें अच्छे से और जल्दी सीख पाते हो. तो इसके लिए एक्सरसाइज, आई वोंट से एक्सेसिव, बट एक्सरसाइज at least where you can forget about the stress
for some time of the day, and you can be yourself after the exercise and start reaching to the blank stage which we were talking about. Then third is move on from your past. 3. Move past the past. तुम्हारा past जा चुका है and it should only be relevant or important for one purpose, which is learning from it. I wish I'd known this sooner, but now I do and now you do as well. इसीलिए भाई पास्ट में बहुत सारे लोग चिपके रहते हैं यार। पास्ट में ये हो गया इसकी वजह से मैं ऐसा हूँ, पास्ट में ये हो गया इसकी वजह से मैं ऐसा हूँ, पास्ट दिस पास्ट दैट, ये वो। भाई किस लेवल पे तुम पास्ट का स्ट्रेस ले रहे हो? तुम कितना पास्ट का स्ट्रेस लोगे यार? पास्ट हो गया, वो चला गया। और मेजरली हम पास्ट का स्ट्रेस क्यों लेते हैं? क्योंकि वो मिस्टेक हम रिपीट करते जा रहे। एक रिलेशनशिप का एक बेसिक एग्जांपल लेता हूं। सपोज आपका फर्स्ट ब्रेकअप हो गया है। फर्स्ट ब्रेकअप के बाद आप सेकंड रिलेशनशिप में जा रहे हो, आपको पास्ट के वही ट्रेड्स दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैंने गलती कर दी, मैंने रिलेशनशिप में जाना ही नहीं चाहिए। आप दूसरी रिलेशनशिप में ब्रेकअप कर लेते हो, फिर आप उस रिग्रेट फेज में चले जाते हो, आप वही पास्ट में जीने लगते हो, आप प्यार को कुछ सोचते ही नहीं। आप भूल जाते हो कि प्यार की इंपॉर्टेंस क्या है, प्यार किस लेवल पे आपको पॉजिटिवली चेंज कर सकता है। बट व्हाट यू डू इंस्टेड, यू स्टे इन पास्ट। आपने गलती रिपीट करी, आपने खुद का सेल्फ वर्थ खत्म कर दिया अगर आप पास्ट में जी रहे हो तो। क्योंकि आपका वर्थ पास्ट में अलग था, प्रेजेंट में अलग है और फ्यूचर में अलग होगा। अगर आप उसी वर्थ पे जी रहे हो तो आप यहां पर जो गेन होने वाला वर्थ है फ्यूचर में, उसको रिड्यूस कर रहे हो, अपनी सेल्फ वर्थ बनने से पहले ही गिरा रहे हो। इन शॉर्ट, आप इलॉन मस्क बनने से पहले ही अपने आप को गरीब बना रहे। भाई इलॉन मस्क बन के तो देखो, फिर देखो गरीब बनना है नहीं बनना आपकी चॉइस है। पहले आप अपने पोटेंशियल तक पहुंचो तो सही, और वहां पे पहुंचोगे कैसे? अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करके। अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी कब? जब आप पास्ट को छोड़ के प्रेजेंट में जीना सीखोगे। और पास्ट को छोड़ के उनकी मिस्टेक्स को लर्न करने का एक बहुत ही इजी और फॉर्मूला या एक बहुत ही इफेक्टिव स्टेप है कि आप पहले तो उस चीज को अपने अंदर से निकाल लो, जितना निकालना है, जितनी इंटेंसिटी से निकालना है। और उसका एक तरीका, या तो आप बैठ के जर्नलिंग करो, लिख लो, और फिर उसके बाद उसको पढ़ो। या फिर आपका कोई दोस्त है, आपकी कोई दोस्त है, आपके फैमिली मेंबर्स है, उनके साथ जाके बैठ के बात करो, जो ट्रस्टवर्दी इनफ हो, जिनको आप शेयर करने के लिए कंफर्टेबल हो। उनके साथ जाओ, बैठो, शेयर करो, बोल दो सारी चीजें। या फिर अपने आप को अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ खुद के साथ, उसमें बोलते जाओ जो भी बोलना है, जिस इंटेंसिटी से बोलना है। फिर उसके बाद आप वापस से देखो अपने आप को। जो जर्नलिंग और वॉइस नोट वाला जो मेथड है, उसमें आपको अपने आप को वापस से देखना है कि मैं किस माइंडसेट में चला जाता हूँ या चला जाती हूँ जब मैं उस पास्ट को देखता हूँ या देखती हूँ या पास्ट में जीने का वापस से एक्सपीरियंस लेता हूँ। जब वो एक्सपीरियंस लेने के बाद हम वापस से आते हैं रियलिटी में, हम रियलिटी में देखते हैं कि अच्छा मैं तो ये बोल रहा था, बट आज कुछ और सिचुएशन है। क्योंकि जब आप खुद को सुनते हो, खुद को रीड करते हो वापस से, तब आप अपने आप को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हो। आप अपने आप को थोड़ा सा अपने से दूर करके देखते हो कि ये एक अलग एंटिटी है, ये एक अलग एंटिटी है, और फिर आप उस चीज को परसीव करते हो एक अलग सेंस में, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से। और जब आप वो थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से अपने आप को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तब आपको अपनी मिस्टेक्स और बेहतर तरीके से दिखेंगे। वो मिस्टेक्स देखने के बाद उस पर रेक्टिफाई करो, उसको काम करो, उस पर उसको सुधारो। और जब आपका फोकस अपने पास्ट से दूर होके मिस्टेक सुधारने में चला जाएगा ना, तब आप प्रेजेंट में जीना सीखोगे, क्योंकि आपका फोकस मिस्टेक सुधारने में है। आपका जो अटैचमेंट था पास्ट में, वही अटैचमेंट अब आपको मोटिवेट कर रहा है कि आप मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करो, उस मिस्टेक्स को सुधारो। और जब उस मिस्टेक्स को सुधारने में फोकस करोगे, तब आप प्रेजेंट में जियोगे, क्योंकि आप मिस्टेक्स प्रेजेंट में सुधार रहे हो। और जब प्रेजेंट पे फोकस करोगे, तब आपको फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए और बेहतर जगह मिलेगी और बेहतर पोजीशन मिलेगी। और जब फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज अच्छे से ग्रैब कर पाओगे उस बेटर पोजीशन की वजह से, तब आप अपने फ्यूचर में अपने असली पोटेंशियल पे पहुंच पाओगे। और जब आप अपनी असली पोटेंशियल पे पहुंच गए, फिर देखना आप अपने पास्ट को सिर्फ और सिर्फ एज अ लर्निंग सोर्स रखोगे, ना कि एज अ रिग्रेटिव इवेंट। सो अगर आपको ये पूरा रिव्यू अच्छा लगा, then please do share it with all your friends.
Please do comment best idea which you heard on this, and please also tell me about what ideas will you implement after watching this video, and do like and subscribe if you want more such videos. And if you want to know what kind of podcast I do when I call guest, press the I tab, go to the Jai Thakkar Show playlist and watch all the podcasts with all the amazing guests and improve yourself. एंड इम्प्रूव डजंट मीन कि आप काम करो काम करो काम करो, बैठ के शांति से मुस्कुराओ। उस मुस्कुराहट का जो प्यारा एहसास है, उस एहसास को जियो, और उस एहसास को जीने के बाद अपने आप को बोलो यस आई कैन डू इट। और उसी मुस्कुराहट के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्माइल।